Hello everyone. So I guess you have done chapter 6 hopefully, right? So basically in chapter 6, while doing the ending part, right, I told you we have just discussed some term that was AC and DC. If you remember, AC and DC, I have used these two terms and I told you that we are going to discuss in detail about this, right? What is direct current and what is alternating current, right? So this is our chapter 7 that we are going to start now, and this is the last second chapter of your first part, as you know, right? After chapter 7, this is the last, this is the only chapter that will give you a bit of trouble, like some অলপ দিব পাৰে কেছ নহয়, লাইক তোমালোকে ভাবিব পাৰা লাইক যে কি দিছে এইবিলাক নহয়, লাইক something weird things, right? Like something like wave form. wave মত আছে না ক্লাছ ফার্স্ট ইয়ার কৰিছিলা 11ত, right? wave optics, sorry, কি কৈছে কি কয় wave oscillations and waves মত আছে না, oscillations and waves, right? So this is something like that. This chapter will depend, like this is a combination of both, right? Current and oscillation and waves. Basically 90% of things will move in oscillations and waves only. Fine, we will try to find like in terms of waves. Fine, every equation we have to determine in terms of waves, right? And phase diagram, if you remember these two things, right? We have done in class 11 the phase diagram, right? And the wave diagrams. These two things we've done in class 11. So hopefully you know that things, basic things, right? That will help us. Fine. So if not, then okay, I'll discuss in class personally, face to face. But I hope that it is clear to you. If not, then you can do one thing, like you just go through the class 11 oscillation and waves, revise it once, and then go through this video. Fine. Before that, it will not be any of use. It will no use. Like this chapter, again I'm telling, this chapter directly we are going to relate with waveform, right? And phasor diagram. These things we are going to discuss. Fine. Now without wasting time, let's start. Fine. Now what is AC? AC means what? Alternating current. So AC, alternating current, right? So in this type of current, basically, in this type of current, right, if I need to write the definition, right? So current, I'll just write as current whose magnitude changes continuously but direction changes periodically. मतलब क्या है इसका, है ना? इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है. लाइक जो करंट का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है ना, जो करंट का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली मतलब फिक्स रहे ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता ही रहे. ठीक है, लाइक एक स्टैटिक पोर्शन कभी आएगा ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, चेंज होता रहेगा. ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो है ना पीरियडिकली चेंज होगा. जैसे कि याद होगा कि हमने चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट में आपको मैंने एक जनरेटर का वर्किंग बताया था, याद है ना? तो आप थोड़ा सा उसमें उसी में आंसर इसका जो आंसर है ना, जो इसका डेफिनेशन है उसी में हमें मिल गया था. कैसे? देखो याद होगा कि मैंने अब क्या कहा था, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना, वैसे वैसे उसमें करंट इंड्यूस होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जैसे जैसे इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, रोटेट हुआ, फिर ऐसे ऐसे गया, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. मतलब वहाँ भी करंट का जो वैल्यू है ना वो भी क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा. कॉमन सेंस. फाइन. आया पास में ना? फिर से बोलना देखो कि सपोज ये है, ये था हमारा कॉइल, है ना. मान लो इस पोजीशन से ऐसे घुमाइए, ऐसे 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 स्लोली 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 घूम रहा है, ऐसे करके आके
ऐसे घुमा, फाइन, फिर ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे आया, है ना। एट दिस पोजीशन तक, है ना, वो इस पोजीशन तक अब क्या बेसिकली करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। अब करंट कॉन्टिन्यूस चेंज क्यों होगा? बिकॉज जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कॉमन सेंस। नाउ यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है क्या, देखो ठीक से देखो, ये चीज़ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, है ना, पीरियोडिकली, कॉन्टिन्यूसली नहीं, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब क्या, जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही चेंज होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि आफ्टर हाफ रोटेशन, वो कॉइल हाफ रोटेशन के बाद ही, है ना, आधा रोटेशन के बाद ही उसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। याद हो आपको? तो याद कीजिए, मैंने क्या कहा था, हाफ रोटेशन तक कुछ नहीं होगा, आराम से जाएगा, डायरेक्शन करंट सेम रहेगा। हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन करंट क्या होता है उसका, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर पहले पॉजिटिव था तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया बात समझ में नहीं आया? सो यही है वैसे आपका AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर और नॉट? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहता है ना, बट डायरेक्शन जो है क्या होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा। जैसे कि मैंने आपका स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम लोग इस चीज़ को वेव फॉर्म से ज़्यादा इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, हम इस हर चीज़ को, है ना, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम चीज़ें हम लोग वेव फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ईजी होता है, क्यों करते हैं इसको, बिकॉज बहुत ईजी। मान लो ऐसा है सपोज, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा होगा ऑसिलेशन वेव्स, ठीक है। सो मान लिया मैंने यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, सपोज ये, ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेसिकली, ये हमारा क्या होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, फाइन। और ये मान लो हमारा करंट है, ये एक्सिस में, है ना, ये एक्सिस में क्या बेसिकली करंट है। सो देखो ये हमारा क्या है, एट दिस पोर्शन, है ना, एकदम हाई रीच हुआ ना, तो इस करंट को क्या बोलेंगे, I0। याद है ना, मैंने कहा था ना, E0 मतलब क्या, मैक्सिमम EMF, है ना। तो उसी तरह से I0 क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। सो देखो हमारा क्या है, ये मैक्सिमम करंट कितना हमारा आया बेसिकली, कितना हमारा बेसिकली आया बताओ, ये हमारा आया I0, और ये बताओ कितना होगा, T/2, ये अब क्या होगा, जस्ट T, ठीक है। आपने ये चीज़ क्लास फर्स्ट ईयर में, मतलब HS फर्स्ट ईयर में आपने चीज़ किया है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है नहीं जब बोलने का जरूरत पड़ेगा मुझे इस चीज़ का, है ना। ये T/2 क्यों आया, क्योंकि देखो ये पूरा, अगर ये पूरा भी देखो यहाँ से लेके ये एक कंप्लीट वेव है, तो अगर ये 0 है, ये कितना होगा, T, मतलब 1 टाइम पीरियड से कहते हैं, 1 टाइम पीरियड, है ना। इन दोनों का ये क्या है, मीन पोर्शन है, मतलब आधा, तो T/2, ठीक है। आया बात समझ गया। अगर मान लो यहाँ से एक और जाता, सपोज बोलो, हाँ, वो टाइम भी मान लो ऐसे और जाता है कि नहीं है, ये कितना होता, 3T/2, ये हमारा कितना होता, 3T/2 होता, ठीक है। फिर ये पूरा आता है ऐसे करके, ये कितना होता, सिर्फ होता, ये कितना होता था, 2T होता, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वेव फॉर्म होता है ना, वेव इस तरह से हमारा फॉर्म होता है। आपको आई गेस पता होगा चीज़, है ना, क्लियर। सो देखो, सॉरी, हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो ठीक से कि यहाँ देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ सपोज, मैं सेम डायग्राम लूँगा, है ना, ये सिंपल मेरा वेव फॉर्म है ऑफ व्हाट, AC करंट का, है ना, ये हमारा AC करंट का वेव फॉर्म है। अब मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा डिटेल दिखा आपको, है ना, इफ़ आई जस्ट शो यू इन डिटेल, थोड़ा और डिटेल में दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा, है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज, ठीक है, 9, यहाँ ठीक है। ये हमारा इधर क्या है, हमारा बेसिकली करंट है I, इधर मेरा क्या बेसिकली टाइम T, है ना। मान लो यहाँ पे 0 नहीं होगा, 1 2
3 4 5, ये 6, फिर यहाँ से कितना होगा 6 ही होगा, 7 8 9 10 11 और मान लो 12, सब बता रहा। हाँ, ये फ्री हैंड डायग्राम है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तो होगा ही, है ना। सो ये हमारा क्या होगा बेसिकली 12, है ना। अब ध्यान से देखो कि इन ईच सेकेंड, है ना, हर सेकेंड में इसका देखो हर सेकेंड में ध्यान से देखोगे, हर ईच सेकेंड, है ना, इन ईच सेकेंड वैल्यू ऑफ करंट चेंज हो रहा है। देखो ये हर सेकंड में क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ करंट कम हो रहा है ना, सॉरी बढ़ रहा है, सॉरी वैल्यू ऑफ करंट अब क्या हो रहा है बेसिकली बढ़ रहा है ऐसे करके। फिर एक पोजीशन आया, पीक पोजीशन है, मान लो मैं समझ देता हूँ, पीक पोजीशन ये लेता हूँ मैं, है ना, ये मेरा एकदम पीक पोजीशन आया, एकदम मान लो यहाँ I0, फिर पीक पोजीशन पकड़ने के बाद क्या हो गया, कम होना शुरू हुआ, ठीक है, और कम होने के बाद क्या हुआ बेसिकली, ये चला गया नेगेटिव में। देखो ये जो माइनस है ना, ये देखो -1 -2 -3, है ना, ये जो नेगेटिव करंट है ना, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव करंट, है ना, ये हमारा क्या है, नेगेटिव करंट है। फाइन, दिस इज व्हाट योर नेगेटिव करंट। अब इस नेगेटिव करंट को अगर मुझे फिजिकली समझाना पड़े, है ना, मुझे अगर इसको फिजिकली समझाना पड़े, मैं क्या बोलूँगा इसको, इट्स वेरी सिंपल, मतलब क्या, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एज सिंपल सेट, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये जो नेगेटिव करंट आपका आया है ना, ये जो नेगेटिव करंट आया है, इसका मतलब क्या है कि इसका करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। मैंने कहा था ना, अगर इधर पहले मान लो, पहले करंट अगर इधर जा रहा था, अब क्या होगा, करंट इधर जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। देखो T/2 का टाइम, है ना, इसके बाद एक इस पीरियड के बाद क्या हुआ, ये वापस से नेगेटिव हो गया, उल्टा अपना क्या किया, उसने डायरेक्शन चेंज किया गया, है कि नहीं है। लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी इसका मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, चेक करो, ठीक है। सो बेसिकली इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो, बट डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही चेंज होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंजेस व्हाट, पीरियडिकली। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। और जैसे कि मैंने इसका वेव फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि नहीं है, तुम्हारा एक वेव का क्वेश्चन क्या था, y = a sin ω t, याद आपको, है ना, a sin ω t। अगर मैं इसको ए हमारा क्या था, ए क्या था, एम्पलीट्यूड था ना, ये हमारा क्या था, इसलिए यही था हमारा ए, याद होगा तो, है ना। और इस बार ए का पोर्शन कौन खाया है, I0। वाई क्या था बेसिकली, ये था वाई, ये हमारा वाई था, है कि नहीं है। सो इस बार इक्वेशन ऑफ ए सी क्या करंट क्या होगा, I = क्या होगा, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो एसी करंट का सिंपल सा वेव फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा इसका, I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अब देखो इस केस में ओमेगा क्या होगा, मैंने कहा था पहले भी ना कि ओमेगा का नाम चेंज होगा। इस केस में ओमेगा क्या बेसिकली है, ओमेगा आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दिस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस केस में ओमेगा क्या बेसिकली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो हमारा क्या हो गया, करंट का हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एसी करंट का इक्वेशन क्या होगा हमेशा, I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर I0 इज द व्हाट, मैक्सिमम करंट। हाँ, I0 इज द व्हाट, मैक्सिमम करंट, ध्यान रखना, ठीक है। I0 इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है। और इसका तो कंपेयर करोगे डायग्राम से, ये नथिंग बट क्या है, हमारा एक एम्पलीट्यूड ही है, याद रहेगा ना। तो बेसिकली हमारे ये क्या हो गया, इसलिए आपको क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल सा एसी करंट का डेफिनेशन, ठीक है, फाइन, याद रहेगा ना, होप सो याद रहे आपको। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आएगा, है ना, वो क्या आएगा,
ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या आएगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट था आपका, है ना, वैसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होता है। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं आया? तो सेम ही होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर इसका डेफिनेशन होगा कि नहीं है, सो ये बस यहाँ करंट को रिप्लेस कर दो ईएमएफ से। ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। सब सेम होगा, बस ये करंट को रिप्लेस कर दो ईएमएफ से, कि नहीं है? सो अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसका वेव इक्वेशन होगा, लिखे, ठीक है ना, या इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं ईएमएफ कह सकते हैं ना। फाइन, क्लियर नॉट? या आप लोग चाहो इसको ई ऐसे इसको हटा के आप लोग यही बोल सकते हो E इज इक्वल टू, देखना अलग अलग दिया होता है सिम्बल्स। ठीक है, ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ये सिंबल जो है ये हमारे हाथ का खेल है ना, हम लोग अपने विषय लेते हैं। सो कैपिटल ई लो, स्मॉल ई लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस बता देना है ई क्या है स्लैब का, ईएमएफ है, और ई नोट क्या है आपका स्लैब का, ई नोट क्या है, व्हाट इज ई नोट? ई नोट इज व्हाट, मैक्सिमम ईएमएफ। ई नोट क्या है हमारा है, मैक्सिमम ईएमएफ है ना। और यही क्वेश्चन याद करो, यही क्वेश्चन हमें कि कहाँ मिला था, एसी जनरेटर में मिला था, है कि नहीं है? याद आपको है ना, भूल गए सब कुछ? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट करंट, है ना। लेकिन उससे आगे बात करूँ मैं, कि नहीं है? इससे पहले मैं थोड़ा तो एक जनरल नॉलेज की बात बताऊंगा, है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि आपने जब बल्ब वगैरह खरीदते हो ना, तो हमारा बल्ब में जो रेटिंग होता है ना, ईएमएफ, जो हमारा ईएमएफ रेटिंग होता है, कितना होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कुछ ऐसा आप लोगों को देखना मिलेगा, किसी भी बल्ब पर रहोगे ना तो आपको एक दिखना इसका वोल्टेज रेटिंग प्लस फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, कि मतलब क्या है इसका। अब ये 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका, कि ये जो 220 वोल्ट है ना, जनरल वोल्टेज जो हमारा इंडिया में है ना, हमें जो दिया जाता है ना, इंडिया में हमारा जो प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है ना, वो कितना वैसे का है, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का। अब देखो 220 वोल्ट ये तो क्लियर होगा, वोल्टेज देगा, सिंपल सा बात है ना। ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये 50 का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, पता है आपको ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है ना। याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखो जैसे मैं आपको दिखाया था ना कि ये कितना है, ये एक ऑसिलेशन है, दिस इज व्हाट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑसिलेशन है, ठीक है ना। तो इन 1 सेकेंड में आपका 50 ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ही है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ही 50 बार, 50 मीन्स 50 ऑसिलेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एसी करंट में। एसी करंट में इसे बोला मैं, एसी करंट में क्या होता है, 1 सेकेंड, सिर्फ ओनली 1 सेकेंड, है कि नहीं है, ओनली इन 1 सेकेंड 50 ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब उसमें मिनिमम अपना 25 टाइम्स है ना, 25 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है, या मैं बोल सकता हूँ 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है अपना वो करंट, इसीलिए इतना डेंजरस है वो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एसी करंट बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए, है ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में सोचो 50 टाइम्स है ना, वो 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है मिनिमम ऑन एन एवरेज, ठीक है। समझ आ रहा ना, वो क्या करता है, ऑन एन एवरेज 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है इसके लिए, क्लियर नॉट, फाइन। सो ये ध्यान रखना बात को, ठीक है ना। ये इंडिया के लिए, हाँ, ये फॉर इंडिया है, फाइन। अब अलग कंट्रीज में क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया का कौन अच्छा फ्रेंड है अभी फिलहाल, कौन है, अमेरिका। चलो सो देखो फॉर अमेरिका, जहाँ तक मुझे आप पता है, मैं देखना रॉन्ग भी हो सकता हूँ, प्लीज़ आप चेक करना एक बार, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑन फिगर, जहाँ तक मुझे याद है मैं जब पढ़ा था, तो अमेरिका का बेसिकली आपको था समथिंग लाइक 110 वोल्ट
एंड 60 हर्ट्ज, ये रेटिंग होता है बेसिकली, है ना। 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज का रेटिंग होता है, मतलब 110 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होता है और 60 हर्ट्ज मतलब 60 टाइम वो क्या होता है, चेंज होता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, सोच रहे होगे ना, क्या फ़र्क पड़ गया, 60 हर्ट्ज हो गया तो 110 वोल्ट हो गया, 10 का ही चेंजेस है, ओनली 10 का फ़र्क है ना, 10 इधर 10 उधर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो फ़र्क पड़ता है। तो देखो कैसे फ़र्क पड़ेगा, जैसे मान लो कि किसी ने सपोज़ अमेरिका में अपना मोबाइल खरीदा, ठीक है, या किसी अलग कंट्री में खरीदा मोबाइल, तो उस कंट्री में जब प्रोडक्शन होता है ना, तो क्या होता है ना, चार्जर ठीक है ना, चार्जर आजकल तो चार्जर बहुत महंगा आता है, और किसी ने आईफोन खरीद लिया फिर तो हो गया भगवान भरोसा, है ना, एक बार में लंबा चुना लगेगा एक बार में, है ना। तो जब चार्जर खरीदते, सपोज इंडिया के लिए जब चार्जर बनता है कि नहीं है, वो चार्जर और जो अमेरिका के लिए चार्जर बनता है वो चार्जर दोनों अलग होता है। क्यों पता है, क्योंकि दोनों चार्जर का इनटेक कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। अब जब अमेरिका का चार्जर लेके यहाँ पे आओगे ना, तो देखना वो चार्जर जल्दी ही ख़राब होता है इंडिया में, देखना किसी से पता करना जो अमेरिका से आया है, और देखना उससे तो चार्जर इंडिया में ख़राब होता है, नहीं होता है, जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी क्या होता है, चार्जर ख़राब होता है। क्यों, बिकॉज उसको बनाया गया है 110 वोल्ट के लिए लेने के लिए, है ना, लेकिन इंडिया में आप कितना दे रहे हो उसको, कितना दे रहे हो, 220 वोल्ट, है ना, एकदम ये तो नाइंसाफ़ी हो गया है ना, एकदम से क्या हो गया, ये नाइंसाफ़ी हो गया बेसिकली, कहाँ 110 कहाँ 220, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है ना, कहाँ अमेरिका कहाँ इंडिया, वो तो वही बात हो गया, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट, है ना, बिकॉज ऑफ डैट इनटेक कैपेसिटी क्या है, उस चार्जर को उतना है ही नहीं, लेकिन आप ज़बरदस्ती दे रहे हो उसको, ले 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 ले, तो क्या होगा, एकदम बोलेगा मर गया मैं तो, ख़त्म, ठीक है ना, वो ले नहीं पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, आया पास समझ नहीं आया। सो इसीलिए हमारा देखना ये सब केसेस, इसलिए हमारा ये रेटिंग दिया जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब इनटेक कैपेसिटी कितना है उसका, जो मटेरियल लेके आया ना उसका इनटेक कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो बस फॉर जनरल नॉलेज क्वेश्चन था, याद रखना चीज़ है कि नहीं है, अगर मन करे तो, ठीक है। अच्छा अब बताइए तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या था, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या था, अगर मैं पूछूं बताइए फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या था, क्या था, ये तो क्लास 9 में पढ़ा था आपने, फ्रीक्वेंसी क्या था, न्यू इक्वल टू टाइम पीरियड क्या था, 1/t, होपफुल याद होगा, या इसको हम लोग बहुत टाइम एफ भी लिखते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी 1/t, या t इज इक्वल टू 1/f होगा, एक ही बात है, ठीक है, फाइन और नॉन, तो याद है, आपको याद रहेगा चीज़ है ना। तो थोड़ा चीज़ें बस मैं फॉर ये सब चीज़ें बस आपका जनरल नॉलेज के लिए बता रहा है ना, लेकिन यही जनरल नॉलेज एग्जाम में 1 मार्क के लिए उठ के आता है, घूमते फिरते, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा बेकार क्वेश्चन पूछता है, फिर माथा ख़राब होता है हमारा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना भी इग्नोर मत करना, बस हाँ जान लेना है क्या। नाउ एसी बात हो गया, एसी बात हो गया, वीसी बात हो गया, है ना, या फिर ईसी बात हो गया, है ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट, सॉरी ए ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यही होगा। अब होगा हमारा डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट, है ना, डीसी मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। अब देखो डायरेक्ट करंट क्या है इसके लिए, कि नहीं है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट करंट तो बहुत आसान होगा, है ना। मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करंट क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब झमेला ही नहीं, लाइक मेरी तरह लेजी इंसान, बैठा है तो बैठा रहेगा, सोया है तो सोया रहेगा, काम करता तो काम करता रहेगा, मतलब फिक्स यूनिफॉर्मली। मतलब इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, ठीक है ना। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या आपको क्या होता है बेसिकली, दोनों ही क्या होता है बेसिकली आपका सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, मतलब मैग्नीट्यूड जितना था उतना ही रहेगा, डायरेक्शन जितना रहेगा था उतना ही, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में कोई बदलाव यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है, याद रहेगा ना, पक्का सोच लो, ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसीलिए अब देखा होगा कि हमने चैप्टर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, है ना, हमेशा कभी एसी नहीं डाला उसमें, हमसे क्या डाला है, बैटरी 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 डाला है, क्योंकि हमें करंट क्या चाहिए या वोल्टेज क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए,
नॉन यूनिफॉर्म होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब कैसे, हम वही बात करेंगे कि एक सर्किट में जब लगा दोगे एक इंडक्टर या फिर एक कैपेसिटर या फिर एक रेजिस्टर, तो वहाँ पे क्या आएगा, जब एसी लगाओगे ना तो वहाँ पे क्या आता है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं ना, डायरेक्शन क्या होगा, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। अगर मैं इसका वेव फॉर्म करूँ, इसे अगर मैं वेव फॉर्म का डायग्राम ड्रॉ करूँ, कैसा कुछ होगा, ये टी हमारा ऐसे होगा, इसमें क्या होगा, ये सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होगा, आई में क्या होगा, एकदम स्ट्रेट। मान लो ये अगर 10 एम्पेयर है, मान लो यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट हमें दिया है ना, मैंने यहाँ पे अगर इसमें 10 एम्पेयर करंट दिया तो थ्रू आउट द टाइम है ना, थ्रू आउट टाइम, जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इसमें सेल ये रहेगा ना, तब तक वो 10 एम्पेयर ऑफ करंट ही देता रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। लाइक 1 सेकेंड में भी 10 ही होगा, 2 सेकेंड में भी 10 ही होगा, 5 सेकेंड में भी 10 ही होगा, 10 सेकेंड में भी 10 ही होगा, है ना। ये चेंज नहीं करेगा अपना मैग्नीट्यूड, ना ही अपना डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा आपका क्या हो गया, सिंपल सा कहानी है आपका एसी, डीसी और एई का, है ना, ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का, ठीक है। सो बेसिकली में क्या था हमारा, बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।